दोस्तों सबसे पहले जय श्री राम और जय हिंद। आज हम देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आराम करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है वीडियो में, क्या इंटरेस्टिंग सा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आनंद रंगनाथन। Good evening, Anand, for this marvelous discussion. Look, only three things are certain in an Indian's life: death, taxes, and that knowingly or unknowingly he ends up walking every day on Waqf land. The issue is not so much that the Waqf Act appeases Muslims. The problem is that it discriminates against non-Muslims. The Waqf Act, in fact, is one of 8 reasons why I believe Hindus are 8th-class citizens in their own country. It is a parallel government being run by the state. In the board, it has its own legislature. In the surveyor, it has its own executive. And in the tribunal, it has its own judiciary. Anand, let me be very blunt. If India is to be saved from becoming an Islamic republic, the Waqf board shouldn't just be amended. It should be abrogated. Because Anand, the amendments are welcome, but they don't go far enough. First, the amendments, number one, yes, good. That Waqf properties now have to be mandatorily registered with district collector's office, good. Government properties identified as Waqf properties will not be considered Waqf properties unless district collector decides on them, good. Property will not be considered Waqf based on oral declaration, good. Government will have the authority to order audits of Waqf property, excellent. Section 107 that said, remarkably, that the statute of limitation will not apply for recovery of Waqf properties is now gone. Excellent. So is section 40 that said the Waqf board can declare any property as Waqf property, and if it is a property that was held by a trust, the board needs to notify the registrar, who may or may not notify the trust. Excellent that women will now also be on the board. But here is the thing. A lot of draconian sections still remain. For example, just a little bit of detail here. Section 28 gives Waqf the power to order a collector to implement the decisions of the board, whatever they may be. Section 8 says the state has to pay for the Waqf survey. This is in direct violation of Article 27 of our Constitution, Anand, that says, quote, no person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. Section 101 says the survey commissioner, members of the board, every officer, every auditor of the board, and every other person appointed to the discharging of any duties imposed on him by this act shall be deemed to be a public servant, as is understood by the IPC. You know what happens when you touch a public servant, literally or metaphorically, don't you? Correct. Section 54 gives the power to declare you an encroacher. Waqf tribunal decision can only be overturned by a long and financially draining legal process, not for nothing. Is Waqf now the 3rd largest landowner in India? People are scared to go to the courts. 77% of Delhi owns Waqf land. Look, even the Delhi High Court judges have opined that Waqf land is Allah's and Allah's alone, and that the government cannot be the owner of this land. Just 30 seconds. Anand, what's going on here? Muslims claimed in court that Gyan Vyapi, built atop a Hindu temple, is on Waqf land. So was Kashi Vishwanath, demolished by Aurangzeb, also on Waqf land? अरे गंगा जमुना तहसीब बोल बोल के गंगा भी ले ली और यमुना भी. I ask you finally 10 seconds. How on earth can a 1500-year-old Hindu temple on Tamil Nadu be adjudged to be by Waqf on Islamic land when Islam is only 1300 years old? Please मुझे समझा. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. अरे सर क्या बात है. दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. तो फिर इस वीडियो में आपने लोगों ने देखा होगा कि आनंद रंगनाथन वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं. वक्फ बोर्ड जिसको अमेंड करने की कोशिश कर रहा है हमारा जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, एक 2024 का इलेक्शन का डिबैकल के बाद. ये बोल सकते हैं ये एक एक्ट है जो इट्स गोइंग थ्रू अ राइट फेस, सही जगह तक जा रहे हैं वो लोग. पर उन्होंने बोला है कि इस एक्ट को अमेंड ही नहीं करना चाहिए था, इसको पूरी तरह वेव ऑफ करके पूरी तरह बाहर फेंक देना चाहिए था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाहर फेंक देना चाहिए था. क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जो सेकुलरिज्म जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक धब्बे की तरह एनैक्ट किया था इंदिरा गांधी ने. उससे पहले सेकुलरिज्म नहीं था हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में. वो धब्बा को अगर हम दबा बोलें भी तो फिर उसको क्यों ला के रखा है, उसका एक
अल्ट्रा वायरस बनता है ये एक्ट, क्योंकि ये एक्ट एक सेकुलर एक्ट है ही नहीं। ये एक्ट है एक्ट जो लीगलाइज करता है एक कम्युनिटी का राइट टू ग्रैब लैंड। और आप लोगों को तो पता ही होगा, एक पूरा गांव, एक 1000 साल 500 साल पुराना एक टेम्पल, एंशियंट टेम्पल जो चोलास से पहले बनाया था तमिलनाडु में, उस टेम्पल का लैंड और उधर के गांवों का पूरा लैंड सब कुछ ले लिया इस वक्फ बोर्ड ने। उन लोगों ने बोल दिया दिस लैंड इज़ आवर लैंड, वी हैव द डीड एंड वी कैन प्रोसीड टू टेक दैट लैंड बैक। फिर उधर उस लैंड में जो दशकों से, सदियों से फैमिली, जो ब्लड लाइन उनका उधर बसा हुआ है, जब इस्लाम नाम का रिलीजन आया नहीं था उससे पहले वो लोग उधर रह रहे हैं, उन लोगों का लैंड इधर कब्ज़े में लगा दिया और बोल दिया कि आपका लैंड नहीं है, ये हमारा लैंड है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमारा जो एक महापुरुष थे जवाहरलाल नेहरू, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने भी लेके आए थे, वो तो डिवाइड एंड रूल करते ही थे, पर जवाहरलाल नेहरू ने भी यही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगा के एक वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 लगाया। उसके बाद उसमें भी अमेंडमेंट्स हुए बहुत सारे। उसमें मेजर अमेंडमेंट 1995 में हुआ जो नरसिम्हा राव ने किया। उसके बाद 2013 में अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट था जिसमें सबसे ज़्यादा पावर्स इस एक्ट को दिए गए। और वो पावर्स तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे ड्रैकोनियन और अल्ट्रा नेशनल पावर्स दिए गए। ऐसे पावर्स को देने का कोई तुक ही नहीं बनता था, और उस पावर्स को वापस लेने के लिए और एक जो एक्ट होता है दैट इज़ नॉट टू पावरफुल, इट्स लाइक इट्स सुपरसीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुपरसीड कर रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचाना चाहते हैं बोलते रह रहे हैं ना राहुल गांधी, ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट है इट्स अल्ट्रा वाइज टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जो आर्टिकल्स है उसका कोई वो नहीं बनता है, तुक ही नहीं बनता है इसको लगाने का। और ये किस लिए लगाया, ये आप लोगों को पता ही है, एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए। और वो कम्युनिटी इनको एन मास वोट देता है, इसलिए उस कम्युनिटी को अपीस करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। और इसीलिए स्टार्टिंग के जब तक ये नेहरू जी के और इंदिरा गांधी के रूल में थे तब मेजॉरिटी गवर्नमेंट आता था इनका। फिर यूपीए में नॉन मेजॉरिटी आया, तब भी इन लोगों ने वो लैंड ग्रैब को लीगलाइज करके इनको दे दिया। और उसके ऊपर ये कभी टेम्पल का लैंड ग्रैब कर देते हैं, और कभी बिहार में जो उनका स्टेट वक्फ बोर्ड है वो एक पूरे गांव को अपना लैंड बोल देता है, और उसके अगेंस्ट लोगों को बिहार का जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने उसको स्टे लगा के रखा है, बोला है कि ये क्या यूजलेस थिंग कर रहे हो आप लोग। उन दशकों से वो लोग उधर रह रहे हैं, अचानक से आप बोल दोगे हमारा लैंड है और आप लोगों को उधर से निकलना पड़ेगा, विकेट करना पड़ेगा। और ये हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये गलत है। आप जो ये चीज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप पहले तो आप बस मुसलमानों के लिए करते थे, पर उसके बाद इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये एक स्टिपुलेशन हटा दिया कि एनीबडी कैन बी आस्क्ड फॉर द लैंड डीड। एंड पता नहीं, आप लोगों को ये भी हो सकता है कि एक दिन बोल दे कि इंडियन पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट बना है, पुराना पार्लियामेंट जो बना है, वो भी वक्फ लैंड है। और ये जो सेकुलरिज्म का बिल्कुल उल्टा जा रहा है ये जो एक्ट है, और इसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं हम। इस एक्ट को एबॉलिश तो हम कर नहीं सकते, मेरे को तो लगता है, क्योंकि जब पावर था बीजेपी गवर्नमेंट के पास 300 सीट्स थे, 303, और कुल मिला के 330-345 था 14 में और 19 में, तब जाके इस एक्ट को हटा देते। या इलेक्शन से पहले जो नरेंद्र मोदी जी बोल देते कि मैं पावर में आऊँगा तो फिर इस एक्ट को हटा दूँगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को हटा दूँगा, एक्ट को हटा दूँगा। फिर जो भी बीजेपी के जो वोटर्स हैं और जो हिंदू वोटर्स हैं, वो जो उदास हो गए थे बीजेपी से, वो उदासीनता निकल जाती। और जैसे इस वीडियो में आप लोगों को पता ही है, आनंद रंगनाथन इज़ प्योरिस्ट, उनको ब्लैक एंड वाइट में दिखाई देता है सब कुछ। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि ये ब्लैक एंड वाइट तरीके से करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, ये एक्ट को अमेंड करने का कोई तुक नहीं बनता है।
पर उनके पास, बीजेपी के पास इतना अभी मैंडेट ही नहीं है वैसा जो मैंडेट उनके पास 19 और 14 में था। वैसा मैंडेट होता तो फिर करने की सोचते भी नहीं है, तो कुछ नहीं करते, तो बोलते रहते अपना ये पसमानदीकरण, तुष्टीकरण, संतुष्टिकरण। समझते कि हम तब जैसे 19 और 14 में इनके जो टॉप लीडर्स बोलते आ रहे थे कि मुसलमानों ने भी हमको वोट दिया है इसलिए हमारा इतना ज़्यादा सीट है। ये बकवास करते करते बोल देते। अभी इनको झटका लगा है इसलिए ये अमेंडमेंट ही लेके आए हैं, अदरवाइज़ झटका नहीं लगता तो फिर ये भी नहीं लेके आते। तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये बिहार का तो अभी लेटेस्ट केस है, इसके ऊपर भी और भी वीडियोस बनाएंगे हम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ काली एंड टेक केयर दोस्तों।